Hello students, welcome to your English class. Today we will start doing practice exercises in our practice book. Lesson number 6, prepositions. As I have already told you about a few prepositions that we usually use in our daily routine, like in, into, on, at, etc. So today we will discuss uses of a few of them. Let us discuss the first worksheet at first. You can see the picture. There are a few things or a boy also that is clearly shown. You can see this box of cherries, no, basket of cherries. There are rats, there is a boy, bench, river. So we have to read out the sentences and understand about the location or the position of these things. So first one is the cherries are the bowl. Can you tell the meaning of this sentence? The cherries are the bowl. ये wrong meaning नहीं convey कर रहा. Cherries are the bowl. Cherries bowl है. This is wrong now. So it is not conveying proper meaning. That's why it is not correct. So there is something missing. Which word is missing? वही वर्ड जस्टिफाई करेगा इस सेंटेंस को. उसी वर्ड की हेल्प से हमें पता चलेगा लोकेशन और सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग भी उसी की, सेंसिबल मीनिंग उसी की हेल्प से मिलेगा. नेक्स्ट इज द रैट्स जम्प्ड ओवर द रिवर. सो रैट्स जम्प्ड द रिवर. Nothing is given over, into, across, what nothing is given. So this is also not a correct sentence. The boy is standing the bench. The boy is standing the bench. Wrong. हमें पोजीशन पता ही नहीं चल रही कि standing the bench. Boy is standing bench. What is this? It is not conveying proper meaning. That's why it is not correct. So move on to next part of this worksheet. The cherries are in the bowl. As per we can see this picture, we can easily understand where the cherries are. Cherries are in the bowl. So in word tells us the position of cherries. Very good. Next, the rats jumped into the river. Where the rats jumped. अब ये jump word को बता रहा है कि कहाँ पर jump किया. Where verb को जहाँ पर करेगा तो हम into लगाएंगे उसके लिए हमेशा. ठीक है. जहाँ position बताई तो हमने in लगाया, और जहाँ पर verb की location बताएंगे, verb को assist करेगा वो word preposition, तो वहाँ पर आएगा into. Rats ने jump किया. कहाँ jump किया? They jumped into the water, into the river. Okay. The boy is standing. Where is he standing? On the bench. So these words in, into, on. These three words tell us the position of various things and verbs. Location and position of various things and verbs. ठीक है. तो subject की पोजीशन हमें पता चलती है या फिर वर्ब का कनेक्शन हमें पता चलता है. ओके. सो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन. नेक्स्ट वर्कशीट आई टोल्ड यू टू रीड. देयर आर मैनी prepositions given here: in, on, at, under, below, behind, over, near, into, in front of, upon, beside, between, after and before. So इन सब के uses हमें नीचे भी बताए हैं. ये देखो, you can see in this picture एक बास्केट दी हुई है एंड देयर इज़ अ पपी ऑल्सो. वेयर इज़ द पपी? अब वेयर का आंसर इन. ओके. दिस इज़ द preposition. वेयर इज़ द पपी? द पपी इज़ इन द बास्केट. ओके. वेयर इज़ पपी? अब इसमें बताओ. द पपी इज़ सिटिंग कहाँ पर? ऑन द टेबल, क्योंकि टेबल के सरफेस के ऊपर बैठा है. ऑन द टेबल. ओके. अब नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर. यहाँ अंदर था इन द बास्केट, यहाँ ऊपर है टेबल के, ऑन द टेबल. यहाँ बास्केट अलग है, पपी एक साइड पे बैठा हुआ है इसके. तो हमें नहीं पता कि इसको साथ लगा हुआ है या दूर है, पिक्चर में क्लियर नहीं. सो वी विल राइट नियर, जहाँ पर एस्टिमेट आप लगाते हो नज़दीक होने का, कितनी दूर, कितनी नज़दीक, साथ में या दूर है, उसका जहाँ पर हम एस्टिमेट लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? नियर. Next is the puppy is behind the basket. You can see that we can see it. It is seen. It is visible just behind it. Okay, इसके पीछे से दिख रहा है. So behind. Okay. अब here the two baskets are placed and there is a puppy. तो where is puppy? In two baskets के बीच में है ना. तो between.
ओके कोई भी थिंग अगर टू थिंग्स के बीच में, या कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी नाउन टू थिंग्स के बीच में है, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, बिटवीन. ओके नेक्स्ट, द पपी इज सिटिंग अमंग द किटन्स. आप देख रहे हो बहुत सारे किटन्स हैं और एक पपी उन किटन्स के बीच में बैठा हुआ है ना. तो पपी इज सिटिंग अमंग द किटन्स, बहुत सारे किटन्स के बीच में. जहाँ दो के बीच में बात करेंगे तो क्या आएगा, बिटवीन. जहाँ बहुत सारों के बीच में आएगा तो क्या आएगा, अमंग. ओके वो काउंटलेस होते हैं, इनको आप काउंट नहीं कर सकते. 3, 4, 6, 10, 20 कितने भी हो सकते हैं. जैसे क्लासरूम में किसी एक बॉय या गर्ल की हम बात करें, वेयर इज़ दैट बॉय, ही इज़ सिटिंग, शी इज़ सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स. ओके नेक्स्ट इज़, यू कैन सी दैट देयर इज़ अ फैन. ऊपर है ना वो, इसके साथ कोई टच नहीं हो रहा ये, और उसकी पहुंच से बाहर है, पपी की पहुंच से, वो उसको टच नहीं कर सकता, जंप करके भी नहीं. सो हम इसको क्या बोलेंगे, द पपी इज़ सिटिंग. पपी कहाँ बैठा है, वेयर इज़ पपी, द पपी इज़ सिटिंग अंडर द फैन. ओके और अगर हम फैन की बात करें, द फैन इज़ above or over, because it is hanging at a proper place, so we will write above. ओके हाँ ये एक जगह से, सॉरी ओवर, ठीक है. वो किसी चीज़ को, जब किसी चीज़ को टच नहीं करता तो वो होता है ओवर. और अगर किसी एक सरफेस को टच कर रहा है लेकिन वो हमारे कांटेक्ट से बाहर है, तो हम लगाते हैं अबव. तो फैन इज़ अबव आवर हेड, द फैन इज़ अबव पपीज़ हेड. ओके एंड पपी इज़ अंडर फैन. ओके नाउ लुक हियर, द पपी इज़ सिटिंग, वेयर इज़ ही, अंडर द टेबल. ठीक है टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल. अब आपको दिख रहे हैं कि बहुत सारे पपीज़ अपनी मदर, ये पपी जो है वो कहाँ लेटा हुआ है, अपनी मदर के पास. तो पपी इज़ स्लीपिंग बी साइड, एकदम साथ लग के. ठीक है जैसे सपोज़ ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के साथ एक और बुक पड़ी हुई है. ठीक है तो ये भी साइड है, ये बिल्कुल एडजॉइनिंग, साथ लगता हुआ. दिस इज साइड. ओके नेक्स्ट इज पपी, यू कैन सी दैट वी कैन सी इट गोइंग इनसाइड द कैनल. सो पपी इज गोइंग इनटू द कैनल. जो आधी विजिबल हो, आपको थोड़ी ब्लर्ड विजिबल चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं इनटू. ठीक है और गोइंग का रिलेशन दिख रहा है आपको इसमें, यू कैन सी द रिलेशन ऑफ गोइंग. पपी चला गया, कहाँ गया, इनटू द कैनल, कैनल में गया, तो गोइंग का रिलेशन दिख रहा है ना, तो इसलिए इनटू आया. नेक्स्ट, द पपी इज़ रनिंग अराउंड द बास्केट. आप देख रहे हो, आपको एक लाइन के थ्रू भी बता दिया, लाइंस लगी हुई हैं. सो ये पता चल रहा है इसकी मूवमेंट अराउंड द बास्केट, चारों तरफ है, अराउंड द बास्केट. ओके आई होप आपको ये यूजेस समझ में आए होंगे. अभी आप सिर्फ इनको फिर से रीड करना, इनको अंडरस्टैंड करना और कोशिश करना कि आप क्वेश्चन नंबर 4 वर्कशीट 1 का क्वेश्चन 4 अपने आप से अटैम्प्ट कर सको. ओके सो अगर आप कर पाओ, वेल एंड गुड. इफ़ यू फील सम डिफ़िकल्टी, वी विल डिस्कस द सेम टुमारो इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.